اور خبریں تفصیل سے کشمیری پنڈتوں کی مختلف تنظیموں اور کارکنوں نے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کی جیوری کے چیئرمین اور اسرائیل فلم ساز نداو لیپڈ کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ روٹس ان کشمیر آرگنائزیشن کے لیڈر امیت رینا نے کہا کہ نداو لیپڈ کو اس فلم کے بارے میں ایسا بیان دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فلم میکر نداو لیپڈ نے فلم دی کشمیر فائلز کو پروپیگنڈا اور بیہودہ فلم قرار دیا تھا۔ اسرائیلی فلم میکر نداو لیپڈ نے فلم دی کشمیر فائلز کو پروپیگنڈا اور بیہودہ فلم قرار دیا، اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل فورم پر، جس کے بعد ملک اور بیرون ملک میں اسرائیلی فلم ساز کی تنقید اور ان کے بیان کی مذمت شروع ہو گئی۔ کشمیری پنڈتوں کی مختلف تنظیموں اور کارکنوں نے جیوری انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے چیئرمین اور اسرائیلی فلم میکر نداو لیپڈ پر تنقید کی ہے۔ روٹس ان کشمیر آرگنائزیشن کے لیڈر امیت رینا نے کہا ہے کہ نداو لیپڈ کو اس فلم کے بارے میں ایسے بیان دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ I enjoyed yesterday evening, most of the evening, very much in Goa because it was a very positive, I think, demonstration of the wonderful relations between India and Israel. Minister Taku we had there was praising our cooperation. We had the Fauda people there, and everyone was very happy. I think that one private person with his own opinion shouldn't change anything here, and that's what I was trying to tell, that the relations are much stronger than this individual, another individual. Each one is entitled to his own opinion. My opinion is obviously different. I'm very happy in India. I think that the relations will continue regardless of this or another individual. And we will continue to celebrate our cooperation and our culture closeness and our unity rather than focusing on disturbing noises. وہیں پنن کشمیر کے یوتھ ونگ کے صدر راہل کول نے بھی اسرائیلی فلم ساز نداو لیپڈ کے بیان کی مذمت کی ہے۔ کول نے کہا ہے کہ پوری دنیا کشمیر کے درد اور تکلیف کو جانتی ہے۔ وہیں انل بھان نے بھی اسرائیلی فلم ساز کے متنازع بیان کی کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ بالی ووڈ اداکار انوپم کھیر نے لیپڈ کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے لیپڈ کے اس بیان کو منصوبہ بند قرار دیا ہے۔ انوپم کھیر کے مطابق ٹول کٹ گینگ سرگرم ہے، ان کا اس طرح کا بیان دینا شرمناک ہے۔ وہیں ممبئی میں اسرائیل کے کونسل جنرل کوبی شوشانی نے انوپم کھیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر دونوں نے اسرائیلی ڈائریکٹر کی جانب سے فلم دی کشمیر فائلز سے متعلق دیے گئے بیان پر میڈیا سے بات چیت کی ہے۔ And I felt after I was in Goa last night and I've heard this speech which we don't accept none whatsoever. The first person to call, and I did right away in the morning, to call Anupam Kher, my friend, and just to apologize. To apologize about speech that was a private opinion, maybe with some European juries, but nothing to do with the state of Israel, officially and unofficially. I'm a diplomat, I cannot intervene in internal Indian discussion, but definitely I want to say that it's not a propaganda. Definitely I would like to say that it was very strong film and to give the place to the people who suffer in Kashmir. I think it's a vulgar remark by that person, and who himself is vulgar and who himself is an opportunist who used this platform to put forth his propaganda or whatever he believes in. The world has identified with the film, and the pain and the problem of Kashmiri Pandits have been going on for the last 32 years. It has strengthened the ties, because when somebody opposes certain things, you discover how together the two countries are. For the amazing, very brilliant gesture by Consul General to have come here proves that this is a relationship, and it is a relationship of pain, because both the countries have suffered exodus and Holocaust, so which is the truth. That's what I feel. بھارت میں اسرائیل کے سفیر نیور گیلون نے بھی نداو لیپڈ کی بیان کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہمارا موقف ان سے الگ ہے۔ انہوں نے لیپڈ کے نام کھلا خط بھی لکھا، جس میں انہوں نے لکھا ہے
कि लैपिड को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। देखिए, एक तो एक जूरिस्ट थे मेरे हिसाब से, उन्होंने अपनी पर्सनल ओपिनियन का इजहार किया है। इंटरनेशनल को छोड़ दीजिए, अगर आप नेशनल लेवल पे भी देखेंगे तो इस फिल्म पे तो काफ़ी तजाद हुआ था। तजाद इन द सेंस कश्मीर पे, कश्मीर सिचुएशन पे बॉलीवुड ने इससे भी पहले फिल्म्स बनाए। हैदर थी, कश्मीर मिशन कश्मीर था, मशाल थी, हालांकि वो पलाइट ऑफ माइग्रेंट्स पे ही थी, मगर बैलेंस थी। ये फिल्म जो थी ये तो टोटली वन साइडेड थी। दूसरा पहलू जो कश्मीर सिचुएशन का था उसको तो बिल्कुल इग्नोर किया गया था और सिर्फ एक ही पहलू इस मुसीबत का, इस तकलीफ का दिखाया था। क्योंकि एक ही साइड की बात करने से आप बायस्ड लगते हैं, आप ऑब्जेक्टिव नहीं लगते, और फिर ऑफिशियली इसको प्रमोट किया गया। और भी कोई सानिया हो गया, नाड़ी मारा का, या और कोई, ये क्या झूठ है क्या? वो इस सच को दबाना चाहता था और कुछ नहीं। इसकी बातों से यही लग रहा है कि वो सच दबाना चाहता है। ये तो सरासर मेरे सामने मेरे भाई को मारा, ये क्या झूठ है क्या? दिन दहाड़े 12:30 बजे इसको मारा गया था, वो क्या झूठ है क्या? या नाड़ी मार का वाक़ा था, वो क्या गलत है क्या? ये सब झूठ छुपाने की बातें कर रहे हैं। बात यह है कि कश्मीर फाइल जो बनी है उसका जो मुद्दा और मकसद था वो 2 कम्युनिटीज़ को तकसीम करना था। कश्मीर के अंदर 1990 से लेके आज तक 32 साल हो गए हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसने भी बहुत सी मुश्किलात झेली हैं, और जो माइनॉरिटी हैं जिसको वहाँ से निकलना पड़ा। और कश्मीर फाइल्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें कोशिश की गई है कि इन कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा दूर किया जाए। तो उनका क्या परसेप्शन है, लेकिन कश्मीर फाइल्स के जो बनाने वाले हैं वो खुद भी आज महसूस करते हैं कि इससे कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त ये पूरी कोशिश की गई कि गैप बढ़े, ज़ख्मों को दोबारा हरा किया जाए। तो वो हालात जो हुए हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी को उन्होंने इग्नोर किया। कश्मीर के अंदर जहाँ कश्मीरी पंडित भाइयों को यहाँ आना पड़ा, वहाँ कश्मीर के जो बाशिंदे हैं लोकल, उनको भी बहुत सी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। उस साइड को उन्होंने ऑफ कर दिया। मुल्क भर के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सरकर्दा अफराद ने इसराइली फिल्मसाज के बयान की कड़ी तनकीद की है और इन पर कश्मीरी पंडितों की किरदार कुशी और तौहीन का इल्जाम लगाया है। कश्मीरी पंडितों और सरकर्दा शख्सियात ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि इसराइली फिल्मसाज नैडो लैपिड को भारत में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसराइली फिल्मसाज और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के ज्यूरी के सरबराह नैडो लैपिड की जानिब से द कश्मीर फाइल्स से मुताल्लिक मुतजाज़ बयान पर फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी फिल्म का एक भी सीन गलत साबित हुआ या कोई डायलॉग हकीकत से परे हुआ तो वो मुस्तकबिल में फिल्म बनाना छोड़ देंगे। शेयर की गई वीडियो के साथ विवेक अग्निहोत्री ने कैप्शन में लिखा कि दहशतगर्दी के हामी और नस्लकुशी से इनकार करने वाले उन्हें कभी खामोश नहीं कर सकते। दोस्तों, कल इफी गोवा में वहां एक ज्यूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले जब मैंने रिसर्च चालू किया था तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। 700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद ये फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके मां बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं,
उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे, और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कश्मीर फाइल्स पर इस्राएली फिल्म साजों के बयान को गैर जरूरी करार देते हुए कहा कि वो दायरे कार से हटकर तबसरा कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लाखों लोगों की जानें गईं और बेशुमार लोग बेघर हुए, इसलिए ऐसे बयानों की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें दहशतगर्द को दहशतगर्द कहने की हिम्मत नहीं है। सबने निंदा की है और किसी ने भी इस बात को सराहा नहीं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इफा के चेयरमैन ही हैज एक्सीडेड हिज ब्रीफ। अपने मैंडेट से बाहर बोलने की आवश्यकता भी नहीं थी, औचित्य भी नहीं था, और उनको उनसे अपेक्षा भी नहीं थी। वो जिस कार्य के लिए आए वो करते। कोई चित्र पसंद आए कि ना आए वो अलग बात है, वो व्यक्तिगत अपनी रुचि की बात है, लेकिन किसी को मोटिव अटैच करना और ये कहना कि ये वल्गर है, ये प्रोपेगेंडा है, उस प्रकार की जजमेंटल कमेंट्स देने का किसी को अधिकार नहीं। और दूसरी बात यह है कि इससे भारतवासियों की, और मैं तो कहता हूं कि सारी मानवता की बहुत ज़्यादा संवेदना जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से एक पूरे के पूरे समुदाय को घर से बेघर बना दिया गया, रातों रात उनको अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके भागना पड़ा। मुझे जो अपने आप को मानव अधिकारों के ठेकेदार कहते हैं, जो सो कॉल्ड तथाकथित ह्यूमन राइट लॉबी है, दुनिया में उन्होंने इसका धंधा बना लिया है। यदि कोई आतंकी किसी को मारता है तो इनमें इतना साहस नहीं कि आतंकी को आतंकी कह भी सके। फिर ये गोलमोल जबान में कहेंगे कि साहब उसके भावनाएं, उसका ये इधर उधर घुमाएंगे बात को। लेकिन अगर कोई मासूम की हत्या होती है, और वो भी कश्मीरी पंडित समुदाय की, तो ये उस हत्या को हत्या मानने के लिए भी तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि इनकी अपनी तरह की राजनीति चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये बेनकाब होते जा रहे हैं। और विशेषकर पिछले 8-9 वर्षों में जब से मोदी जी ने सरकार की बागडोर संभाली है और ये दोहरी नीति को समाप्त कर दिया गया, धीरे धीरे जनता भी इनका असली चेहरा समझ गई है। श्रीनगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उनका कहना है कि वक्त आने पर वो अपने नंबर्स साबित करेंगे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कॉरपोरेशन में मसाइल खड़े करने के इल्जामात लगाए। जुनैद अजीम मत्तू का कहना है कि बीजेपी और एनसी को कोरम पूरा करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। जाती मुफाद, आपस में खींचातानी, ये उतारने चढ़ाने का 6-6 महीने बाद मसला, ये बाजार में ये बात डालनी कि आज कितना देना है पैसा, आज कितना लेना है पैसा, ये शहर श्रीनगर के साथ भी अब एक जुल्म है, इंतहा है। तो हमारा जो ग्रुप है वो इंटैक्ट है। मैथमेटिक्स मैंने आपको नंबर बता दिया। अब ये किस ख्वाब गफलत में वो मुझे पता नहीं, आपको इमरान साहब उसको वजाहतन बताएंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उनके ऑफिस में एक उनके कॉर्पोरेटर हैं और 2 लोग मैं नहीं जानता हूं और 2 कौन है, एक थे कॉर्पोरेटर उनके, कि हम जी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। देखिए, इसमें ये लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता, इसमें सपोर्ट होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसमें फ्लोर स्ट्रेंथ होती है, फ्लोर टेस्ट होता है। बीजेपी का अपना मंशूर है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। आई रिस्पेक्ट दैट, इट इज अ डेमोक्रेसी। लेकिन 2-3 चीजें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गिलकार साहब ने कही, उनकी मैं बात करूंगा। एक, उनने कहा कि ये जब मेयर बने अल्ताफ बुखारी साहब ने हमारे सामने गिड़गिड़ाया। पहले अल्ताफ बुखारी साहब एक बहुत सीनियर लीडर हैं। अल्ताफ बुखारी साहब अपना घर बनाने के लिए सियासत में नहीं निकले हैं। अल्ताफ बुखारी साहब भी एक नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए, नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आए हैं। वो भी एक कोशिश कर रहे हैं कि यहां एक बदलाव आए। और एक इतने सीनियर लीडर के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। उनने सजाद लोन साहब का कहा कि सजाद लोन साहब ने हमसे भीख मांगी जब पहली बार मुझे मेयर बनना था। सजाद लोन साहब अलग तंजीम में, मैं अलग तंजीम में हूं, लेकिन मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं। वो भी एक बहुत सीनियर लीडर हैं। ये जेबा नहीं देता जो कहा गया, बहुत बदकिस्मती की बात है, मैं मजम्मत करता हूं।
मैं एक और स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूं कि एलजी साहब का नाम इसमें घसीटा जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का नाम घसीटा जा रहा है कि मैंने जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से 200 बार अपॉइंटमेंट लिए। मैं तो आप सबके सामने बोल रहा हूं, मेरा काम नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना। एनी एंगेजमेंट विद द सेंटर वो हमारी पार्टी क़यादत का काम है। मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं की है। मैं आपके वजाहतन आपसे बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक बड़ा अदना सा, हिंदुस्तान में 150-200 मेयर होंगे। मेरी न वो औकात है, न मेरा वो एम्बिशन है, न मेरा दर्जा है कि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मीटिंग सीख करूं। तो ड्रैग किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें, विच इज अनफॉर्चुनेट। फिर कहा गया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑनरेबल एलजी साहब को क्यों बार बार इसमें लाया जा रहा है? मेरी ऑनरेबल एलजी साहब के साथ एक ये रिलेशन है, मैं मेयर हूं, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, और उनने हमेशा वक्तन फवक्तन शहर की बेहतरी के लिए ये चाहा है कि काम हो। उनने कोई गलत थोड़ी एडवांटेज मुझे दी है, उनने कोई अनड्यू फेवर थोड़ी दिया है, उनने कहीं पे कुछ ऐसा थोड़ी किया है जो उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनका नाम इसमें क्यों लाया जा रहा है बार बार? और ये कहना, ऐसे अल्फाज यूज करने के ऑनरेबल एलजी साहब शायद डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूं। जितना मुझे ऑनरेबल एलजी साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े स्ट्रांग लीडर हैं, उनका फोकस है, उनका प्रिसीजन है, उनको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको पता है। मुझे लगता है ये वाजिया करना चाहिए था हमें, वाजिया उनको भी पता होना चाहिए था। दे शुड लुक एट द हिस्ट्री। अब उन्होंने डिसोन किया अपने लोगों को। जो वन डे ब्लॉक कन्वेंशन 2.5 महीने पहले डाउनटाउन खानियार में हुआ, पुलिस के लॉग्स चेक करने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा, तस्वीरें दिखाएंगे हम आपको कि दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, द पीपल हु वर डिसोन्ड। रिसेंट जो अभी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे उसमें हल्का मीटिंग थी जिसमें जिसको डिसोन किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में, ही इज ओनली वन, उसमें भी वो आप देखेंगे कि दिस इज, देखिए झूठ को हम झूठ बोलने निकले, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी, कोई भी चीज, कोई भी गरज नहीं है। आई थिंक बिकॉज जुनैद साहब हैज स्पोकन एब्सोल्युटली फ्रॉम हिज हार्ट, एब्सोल्युटली वी हैव टोल्ड यू पीपल दैट दिस इज व्हाट इज द रियलिटी। ये एक और चीज जो मुझे लगता है हमें बोलनी चाहिए। अब हमने 4 साल से देखा है ये, आई हैव बीन इन ऑपोजिशन, वी हैव बीन इन टुगेदर, वी हैव बीन अपार्ट, बट नाउ अनदर ग्रुप विल कम एंड दे विल गिव प्रेस कॉन्फ्रेंस stating we have taken the support, then another group will come and say we have taken the support. ये ड्रामा चलता रहेगा, but the reality is the day we are asked to prove our numbers, we will prove. हम मंडी वंडी का साथ देने वाले नहीं है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने कहा कि मेयर एसएमसी के उसूल और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेयर कारपोरेटर्स का एहतराम नहीं करते, आवाम का पैसा लूट रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सियासत गर्मा गई है। मेयर को हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, उसके किसके पास कितनी ताकत है, कितने लोग हैं, इस पे बहस चल रही है। हमारे साथ डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब हैं। परवेज साहब, मुझे एक चीज बताएं, क्या वाकई मेयर को हटाने का मंसूबा है? जी बिल्कुल, ये तो क्लियर सी बात है। हम सारे लोग यहाँ पे, आपने देखा होगा जब पिछली बार यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, उसकी कयादत जो मेयर साहब ने आज एलिगेशन लगाई कि बीजेपी ने हटाया, वहाँ उसकी कयादत हमारे कॉर्पोरेटर वही डार साहब कर रहे थे उस ग्रुप की। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ ही है, और जब इसने पहले पहल की, जब हमने इसका साथ उसमें दिया, हम आगे भी। नंबर्स हैं क्या? नंबर्स बिल्कुल है। कोरम का मसला है। कोरम अब की बार जो बदल गया है कि 54 लोग हैं, 56 लोग हों, तो वो जरा मसला जी आप मेयर साहब को ये कहिए, लोगों को धमकियां देना, ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। यहाँ पे उसके खिलाफ 72 में से 71 लोग आएंगे। बीजेपी की एक मीटिंग हुई, वहाँ ये कहा गया कि एक ग्रीन सिग्नल दी गई कि मेयर को हटाने का आप साथ दे दीजिए। उनके पास 4 + 4 या आप कहें 7 लोग हैं, क्योंकि 4 उनके डायरेक्ट हैं, 3 इनडायरेक्ट हैं या 4 इनडायरेक्ट हैं। अगर मीटिंग हो गई, बात हो गई, फिर क्या रात में क्या हुआ कि वो अकेला रह गया? कौन सा अकेला रह गया? जब कल मीटिंग हुई, आज वो कह रहे हैं वेट एंड वॉच। जी देखिए, उनका कहना, वो जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस बंदे ने दी, वो यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है, और यहाँ की जो अहम स्टैंडिंग कमेटी है बाय वर्च्यू ऑफ दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 2000, वो उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर है।
اس کو پتا ہے کہ شہر میں کہاں پہ میئر صاحب نے غلطیاں کی ہے, کہاں پہ اس نے ظلم کیے ہیں, کہاں پہ اس نے خود کام کیے ہیں جو اس کو بھی پتا نہیں ہے. وہ تو بولے گا, جائز بات تو اس کی ہے. ٹارگٹ آپ ہیں اور آپ کے ذریعے ٹارگٹ نیشنل کانفرنس. جی یہ میں کہوں گا کہ یہاں پہ ٹارگٹ کوئی چیز نہیں ہے پی ایچ ڈی کے علاوہ. کہہ رہے ہیں اور ہمارا واسطہ این سی سے رہا ہے. ہم نے 20 سال نیشنل کانفرنس میں 22 سال دیے ہیں. ہم نے ابھی بھی نیشنل کانفرنس میں نہیں ہے. ہم اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کس پارٹی کو یہاں پہ جتانا ہے, ہم کس کو پارٹی کو سپورٹ کریں گے. ابھی ہم کسی پارٹی میں نہیں گئے ہیں. میں گئے تھے جب 370 کا مسئلہ ہوا, ہم نے علیحدگی کی پھر سے اختیار کر لی. اور جب جنید موتو کا نو کانفیڈنس موشن ہوا تب ہمارے اس نیشنل کانفرنس نے 4 بندوں کو نکالا ہے تنظیم سے, کیونکہ انہوں نے میئر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن میں حصہ لیا. ہم نے تب بی جے پی کا ساتھ نہیں دیا تھا. ہم نے اپنے کارپوریٹر جو انڈیپینڈنٹ ہے یہاں پہ وہی ڈار صاحب, انہوں نے نو کانفیڈنس بھرا تھا, ان کا ساتھ دیا تھا. یہ تو تب بھی ایک تو بی جے پی کا سپورٹ لے کے ستیہ پال ملک صاحب نے 20 دن پہلے اعلان کیا. ابھی تو مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ میں نے الیکشن جیتا ہے نہیں جیتا ہے. ستیہ پال ملک صاحب نے تو مجھے نہیں کہا کہ میئر. مجھے ایک چیز بتائیے, یہ یہاں پہ نیشنل کانفرنس کا آفیشیلی ایک ممبر ہے. اب آپ نے کہہ دیا کہ ہم بھی نیشنل کانفرنس ہی ہیں, کیونکہ پہلے بھی تھے, اب بیچ میں چھوڑ دیا تھا, انڈیپینڈنٹ لڑا. لیکن یہاں کیا نیشنل کانفرنس کی قیادت آپ کر رہے ہیں کہ کارپوریٹرز کی؟ نہیں, میں یہاں پہ ایز انڈیپینڈنٹ ڈپٹی میئر بیٹھا ہوں. میں نے یہاں پہ بی جے پی کے خلاف بھی الیکشن لڑا ہے. یہاں پہ کسی بندے نے بی جے پی کے خلاف الیکشن نہیں لڑا ہے. میں نے بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑا ہے اور میں بی جے پی کے خلاف یہاں پہ میئر بنا ہوں. میں نے سوال پوچھا میئر سے کہ عام لوگوں میں یہ دھارنا ہے, ایک میسج گئی ہے کہ یہاں کرپشن چل رہا ہے. آپ لوگوں نے بھی ایک دوسرے پہ الزامات لگائے. انہوں نے کہا میں تیار ہوں, کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ایجنسی کرے, کس کے پاس کتنے ایسٹس ہیں, کس نے کتنا مال کمایا ہے غیر مطلب کرپشن سے. کیا آپ اور آپ کے ساتھی تیار ہیں؟ جی ہم بالکل تیار ہیں. اگر میئر صاحب کو بھی اس کمیٹی کا چیئرمین گورنمنٹ نامزد کرتی ہے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. مگر میئر صاحب خود فیصلے سنائے, ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ گھر بیٹھ کے کہانیاں بنائے اور لوگوں کو سنائے, ہم اس کے لیے نہیں ہے. ہمیں اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں پر پورا بھروسہ ہے. اگر انہوں نے کہیں پہ کمپلینٹ کی ہے ہمارے کارپوریٹرز کے خلاف, ڈپٹی میئر کے خلاف, وہ دیکھ رہی ہے. جب ہم ان کا کام ہیمپر نہیں کر رہے ہیں, ان کی انویسٹیگیشن کو ہیمپر نہیں ہونے دینا ہے, کرے نا, آرام سے کرے. جموں میں جو میٹنگ ہوئی بی جے پی کی, ان کا ساتھ لینے مانگنے گئے تھے کیا ہم جموں گھومنے بھی نہیں جا سکتے ہیں؟ اپنی یوٹی ہے, نہیں جا سکتے ہیں. اگر یہاں سے کوئی بندہ جموں گیا, دلی گیا, کیا یہ ضروری ہے کہ اب بی جے پی والوں سے ہی ملنے کے لیے گیا ہے کسی کے ساتھ مانگنے نہیں؟ کس لیے؟ جی وہ تو ساتھ ہے, جی وہ تو ساتھ ہے, وہ تو اس موشن کے ساتھ ہی ہے. انہوں نے کل کہا کہ اگر یہاں پہ نو کانفیڈنس موشن ہوگی تو ہم تیار ہیں, ہم سپورٹ کریں گے. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, چاہے ہمارا جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے, اگر وہ یہاں پہ نو کانفیڈنس موشن دائر کرے, جو میرا اپنا گروپ ہے یہاں پہ, میں بھی سپورٹ کروں گا. شکریہ. بی جے پی نے سری نگر میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں ان کے ایک کارپوریٹر کے ذریعے کل کی ایک پریس کانفرنس سے خود کو الگ کر لیا ہے. بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے آج کہا کہ کارپوریٹر نذیر گلکار کی طرف سے کی گئی پی سی پارٹی قائدین کی رضامندی کے بغیر تھی, اور یہ پارٹی قائدین پر منحصر ہے کہ کس کی حمایت کرنی ہے اور کس کی نہیں. ٹھاکر نے یہ بھی کہا کہ ایس ایم سی کے میئر جنید عظیم متو کے خلاف کل پریس کانفرنس کرنے والوں کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے, بھارتیہ جنتا پارٹی نے کوئی پریس کانفرنس کل نہیں کی ہے. ایز اے آفیشیل سپوکس پرسن اگر پریس کانفرنس کرنی ہوتی تو میں پریس کانفرنس کرتا, یا جو ہمارے اور سپوکس پرسنز ہے. اور جو کل کچھ لوگوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا بینر استعمال کرتے بھارتیہ جنتا پارٹی کے یہاں بینر کے جو پریس کانفرنس دی, اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. پارٹی کا ساتھ اس کے ساتھ کچھ لینا ہے. نہ وہ پارٹی نے ان کو وہ اتھارٹی دی ہے, اور نہ وہ ایتھرز پرسن ہے کہ وہ میڈیا کے سامنے جائے, اور نہ ان کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ وہ ڈیسیجن لے سکے کہ ہمیں کس کو سپورٹ کرنا ہے اور کس کو سپورٹ نہیں کرنا ہے. یہ جناب جو ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ اور اسٹیٹ چیف رویندر رینا جی ہے, ان کے ڈومن میں آتا ہے. اور جو ہمارے جنرل سیکرٹری اور کشمیر امورات کی جو انچارج ہے سنیل شرما جی, اگر انہوں نے کچھ ایسا ڈیسیجن لیا ہوتا تو ہماری جو میونسپلٹی میں ہمارے چیف ویپ ہے عارف راجہ صاحب, جو سینیٹیشن اور ہیلتھ کے چیئرمین بھی ہے, تو ان کے ذریعے شاید پارٹی اس کو کراتی.
भारतीय जनता पार्टी कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपने आप को अलग करती है। ये उनकी जाती राय है, ये उनकी जाती कहना है। भारतीय जनता पार्टी का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक बावकार तकरीब में कौमी तालीमी पॉलिसी का आगाज़ किया। ये डिजिटल पहल NEP 2020 रसाई, मसावात, मयार और जवाबदेही के तस्वुरात पर मबनी है। LG ने NEP 2020 के तनाजुर में खिताब करते हुए कहा कि तलबा और फैकल्टी के सामने नई तालीमी पॉलिसी से फ़ायदा उठाने का भरपूर मौका है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे विद्यार्थी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बन सके, टीम वर्क एक साथ कैसे कर सके, लीडरशिप क्वालिटीज और इनोवेटिव थिंकिंग कैसे पैदा हो सके, सिलेबस से हटकर क्रिएटिव स्किल्स की तरफ कैसे हम उन्हें प्रेरित कर सकें, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड भी संरक्षित रहे। और इसलिए NEP ढेर सारी चीजों हमें सुविधा देने के लिए प्रेरित करता है। इस अच्छे से कैसे हम इस पूरी व्यवस्था को चला सकें, एक छोटा सा संवाद आपका, एक छोटी सी आपकी पहल, रिसोर्स फ्रीडम नए आविष्कार को जन्म दे सकता है। और जम्मू कश्मीर के बच्चे भी पैरासूट या वेबकैम का इन्वेंशन आने वाले दिनों में कर सकें, ऐसी व्यवस्था हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी तकरीर में LG ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर UT मुल्क का दूसरा UT है जिसने हर पॉलिसी को बखूबी लागू किया। उन्होंने कहा कि नौजवानों के नए स्टार्टअप पर तवज्जो देनी चाहिए, जहां नतीजा खैज रहनुमाई की हतमी जिम्मेदारी असातिज़ा के कंधों पर आयद होती है। दूसरा यूनियन टेरिटरी है जिसने सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज स्टार्टअप और यूनिकॉर्न के युग में जम्मू कश्मीर की युवा पीढ़ी को इनोवेशन, स्टार्टअप्स की ओर कैसे हम प्रेरित कर सकें। इस परिवर्तन के साथ पूरे एजुकेशन सिस्टम को और जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाने में सबसे ज्यादा भूमिका विश्वविद्यालयों की हो, महाविद्यालयों की हो, इसमें आपका योगदान मिले, मैं यही प्रार्थना आपसे करने आया हूं। पर फिर आपका इस्तकबाल है। PM पैकेज मुलाजमीन जम्मू में अपनी मुलाजिमतों की मुंतकली की मांग को लेकर सरापा एहतजाज बने हुए हैं। 202 दिनों से उनका एहतजाज जारी है। वादी में कश्मीरी पंडितों पर हमले के बाद ये मुलाजमीन अपनी मुलाजमत जम्मू मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 कानून चलते हैं, पहले जैसे आर्टिकल 370 और 35A था, आज भी 2 कानून चलते हैं। एक PM पैकेज एम्प्लॉयज के लिए कानून है और एक जो जनरल कैटेगरी के एम्प्लॉयज है, इनकी कहां सिफारिश है। और मैं चाहता हूं कि PM पैकेज इसको स्ट्रिक्ट किया जाए, इसको खत्म किया जाए और इनके लिए ये भी जनरल एम्प्लॉय जैसे होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर तबादला होना चाहिए, क्या इनको डिस्ट्रिक्ट में कहां भेजा? कई यहाँ बच्चे हमारे हैं जो यहाँ वहां पैदा ही नहीं हुए और उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा। क्या डिस्ट्रिक्ट है वो? इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसका अपना? इसका डिस्ट्रिक्ट है पूरा जम्मू कश्मीर, इसका डिस्ट्रिक्ट है पूरा भारत और इनको कहीं भी भेज सकते थे। और ये PM पैकेज कुछ शिकस्त खुर्दों ने इस तरह मैनिपुलेट किया गया कि मेरे बहनों को, मेरी छोटी बच्चियों को कहां गांव के इंटीरियर में भेजा गया जो आतंकवादियों से त्रास दे। और इसलिए मेरा निवेदन है, मेरी अपील है एक बार भारत सरकार से, सबसे पहले इनका जो जितना भी तनख्वाह, जितने महीनों का इनका बंद है तनख्वाह, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बच्चों को दूध पिलाना है, इनका परिवार चलाना है, इनके लिए पे रिलीज किया जाए इमीडिएटली। हमारी सरकार क्या कर रही है जिनसे हमें इतनी उम्मीद है मोदी जी से, है ना। 370 आर्टिकल जब हटा, आई वॉज इन US, मुझे याद है पूरी रात हम सोए नहीं, पूरी रात रोते रहे कि इतने साल बाद कि एक चीज हुई है, एक थोड़ी पॉजिटिविटी हुई है। पर अब इन लोगों को देख के लगता है कि क्या फायदा क्या है। कश्मीर में मिलिटेंटों के बुनियादी ढांचे के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त में सुपर पुलिस ने 22 RR के साथ अंसार ग़ज़वतुल हिंद के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है और शिमाली कश्मीर के अंसार ग़ज़वतुल हिंद हैंडलर को गिरफ्तार किया। इसके अलावा 4 ओवरग्राउंड वर्करों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से मुजरिमाना मवाद, भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया, जिससे तंजीम के कारिंदों को बड़ा धचका लगा है और इस तरह एक बड़ा सानहा टल गया। इसके अलावा
अवंतीपुरा में भी असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मुश्ताक अहमद भट्ट, छानापुरा श्रीनगर और अशफाक अहमद शाह साकिन बडगाम के तौर पर की गई है। वहीं अब्दुल मजीद कुमार साकिन बोनियार और अब्दुल रशीद कुमार साकिन पटन को भी गिरफ्तार किया गया है। सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्तों ने गांव क्लश हवेलियां और जिला तरन तारन के करीबी इलाके में पाकिस्तान से मुश्तबा ड्रोन के दाखिल होने की गूंजती आवाज़ सुनी। फोर्सेस के मुताबिक फौजियों ने फायरिंग करके मुश्तबा ड्रोन को रोकने की कोशिश की। गोली लगने पर ड्रोन जमीन पर आ गिरा। फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारों को इत्तला दी गई। तरकमला कुपवाड़ा डीडीसी नशिस्त पर इंतखाबात का दिलचस्प मोड़ आ गया है। पीडीपी अपने वर्करों को कलम दवात का बटन न दबाकर आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का मशवरा दे रही है, जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपने वर्करों को कलम दवात का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर किसी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन प्रॉक्सी उम्मीदवार को गले लगाया जा रहा है और अंदरूनी तौर पर आज़ाद उम्मीदवार को हिमायत की जा रही है। पेश है कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की खास रिपोर्ट। कुपवाड़ा जिले में डीडीसी की खाली निशिस्त पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। डीडीसी इंतखाबात को लेकर कुपवाड़ा में एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि इस निशिस्त पर उम्मीदवारों को लेकर सियासी जमातों ने तजब्जुब पैदा कर दिया है। जब ये 2 साल पहले इलेक्शन हुआ था, तब ये जो सीट थी पीएजीडी में पीडीपी को मिली थी, और उस वक्त भी अगर आप देखोगे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त भी इसी कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, और आज भी हम उसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल है पीडीपी ने जो अभी अपना ये अपना आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पे जो है खड़ा किया है, लेकिन हमारे लिए मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए मुश्किल तो है, क्योंकि वोट मांगना अब कलम दवात के लिए, तो लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त भी प्रॉक्सी कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा किया था, और आज भी उनका प्रॉक्सी कैंडिडेट है। पहले इस निशिस्त पर पीडीपी उम्मीदवार को पीएजीडी की हिमायत हासिल थी, लेकिन अब की बार पीडीपी ने अपना नया उम्मीदवार खड़ा किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले वाले उम्मीदवार के कलम दवात वाले चुनाव को बरकरार रखा है। उधर पीडीपी ने भी अपना अलग से उम्मीदवार मैदान में उतारा है। इस सारी सूरत हाल का दिलचस्प पहलू ये है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी पीएजीडी से अलहदा हो चुकी है, लिहाजा पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वोटरों को भी अब कलम दवात के चुनावी निशान पर न सिर्फ वोट डालना होगा, बल्कि उसके हक में मुहिम भी चलानी होगी। पिछले 20-22 साल से इसी चुनाव निशान पर हम लोगों से वोट लेते आए हैं, और यही हमारा असली निशान भी है। तो हमें भी अपनी जगह बड़ा दुखी होता है कि हमें कलम दवात के लिए वोट नहीं मांगना पड़ रहा है, कि हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि हमारे सिंबल पे वोट डालो, बल्कि हम लोगों को कह रहे हैं कि हमारे इस वक्त जो है हमारे सिंबल के खिलाफ उनको वोट डालना है। तो हमारे लिए भी बड़ी ट्रिकी सिचुएशन भी है और बड़ी दुखदायक भी है। ताहम इस सारे मामले पर पीएजीडी की अहम इकाई नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है, जो अभी भी अपनी पॉलिसी वज़ह नहीं कर रही है। हालांकि पीएजीडी की साबिक उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उसकी मदद कर रहे हैं। चुनाचे नई उभरने वाली सूरत हाल में वोटर हैरान और परेशान हैं कि आखिर 5 दिसंबर को उम्मीदवार किसके हक में वोट डालेंगे। ये दिलचस्प इसलिए भी बन चुका है ये इलेक्शन, क्योंकि जो यहाँ पे पार्टियाँ हैं, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे पीडीपी, किसी के पास अपना निशान नहीं है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीडीपी के निशान पे वोट मांग रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ खास पता ही नहीं है, पीडीपी अपने कैंडिडेट के लिए किसी और नाम पे वोट मांग रही है। अब सियासी पार्टियाँ ये भी परेशान हैं कि अब लोगों पे जाएं, ये पार्टियाँ किस नाम पे जाएंगी। वाज़ेह है कि डीडीसी की इस निशिस्त पर इंतखाबात को कालादम करार दिया गया था, क्योंकि इस इंतखाबी अमल में पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की खातून उम्मीदवार भी मैदान में उतरी थी, और इलेक्शन कमीशन ने उनकी जानिब दाखिल कागजात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हुए इस निशिस्त पर हुए इंतखाबात को कालादम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 5 दिसंबर को इस निशिस्त पर वोटिंग करने की बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके बाद जिले में इस निशिस्त को लेकर इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई है। कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की रिपोर्ट।
अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बिजली बिल में इजाफा करने से आम लोगों पर माली बोझ पड़ा है। मीर ने इस हवाले से एलजी से मुतालबा किया कि इस पर नजरसानी की जाए। कंज्यूमर्स की कैटेगरी देखकर, उनकी स्ट्रेंथ देखकर इकोनॉमिकली और उनकी यूजेज देखकर इनको रिकन्सिडर रिविजिट करना चाहिए ये फैसला, ये आंखें बंद करके, और सारे लीडरों को भी इस पर बात करनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि गवर्नर साहब इसको रिविजिट करेंगे कि यूथ को हम सारा जो हमारा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है, हमारे बहनें हैं, हमारे भाई हैं, बहुत परेशान है, पढ़ लिख के बहुत परेशान है। कुछ हमारे नौजवान भाई जो है वो ड्रग्स के अंदर मुब्तला हो गए। हम सबको हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि वो आए, एक बार हमारी पार्टी के साथ वो जुड़े, हमें मौका दे। इंशाल्लाह हम उनके लिए शाना बशाना तैयार है, खड़ा है। एक तरफ एलजी इंतजामिया जम्मू कश्मीर यूटी में खेलों को फरोग देने के लिए बेपनाह कोशिशें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ खेलों का बुनियादी ढांचा अब भी खस्ताहाल है, जिसकी जिंदा मिसाल रहनवारी वारिस खान स्पोर्ट्स ग्राउंड है। उसमें से उन्होंने एक फंड हमारे अलॉट किया है कि वो तकरीबन वो 1 करोड़ से ऊपर आ रहा है। तो उनको यहाँ जब यहाँ काम शुरू होने हुआ तो हमारे सामने उन जो फंड्स जो ये अलॉट किए गए इस ग्राउंड के लिए, हमारे सामने वो पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ यहाँ। तो हम आपकी वजह से ये गवर्नमेंट हुकाम से, आला हुकाम से ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए, जब तक ग्राउंड सही नहीं होगा तब तक खेल सही नहीं होगा। आज की डेट में अभी तक कोई इक्विपमेंट नहीं आ गया। उन्होंने बोला था हम यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट बनाएंगे सिंथेटिक टर्फ वॉलीबॉल के लिए, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बोल रहे थे, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की पार्किंग है, पार्किंग को भी हम करेंगे डेवलप, मगर पार्किंग वैसी की वैसी रह गई। और यहाँ पे ये कचरा है, ये कुछ यहाँ पे है, ये बादामवारी में भी बहुत थे, ये कुछ यहाँ स्टोन्स पुरानी, ये उसको भी मैडम ने बोला था हम करेंगे, और मेयर साहब भी आए थे लास्ट टाइम, बोला था हम इसको रिमूव करवाएंगे, मगर अभी कुछ काम हुआ नहीं इस पे। जिला गांधरबल शेरपथरी इलाके की आपाशी नहर बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से हर गुजरते दिन के साथ नाले में तब्दील होती जा रही है। मुतल्लिका महकमे की लापरवाही और लोगों की गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह नहर सुकड़ रही है। मुतल्लिका महकमे की अदम तवज्जुही की वजह से ये नहर इस हद तक आलूदा हो चुकी है कि नहर के आसपास रहने वाले लोगों में भी बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया है। तुम गंदगी कचा गर नबर बनान नीरुन कहें पे थोप दिन वनुक तान कम से कम 4-5 लट रिटन एप्लीकेशन दिस अमन मेहरबानी कर कनाल कर दो सफाई, मगर ये लोग टस से मस नहीं हो जाते हैं। बुछुस गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशनस गुल तो गंडित अपील करान कि अत पे गस कार्रवाई गस। बुछुस गवर्नर साहबस पुरजोर अपील करान कि अस गई यपै वारिया बीमार। वुचोस लकट लकट शुर सुबह नेरान स्कूल गोट पे तमन मास्क अचन दिन, तमन नेरान माज सत, तमन पे असस थोप दिन कि परस आये रपे 7 लाख 6.5 लाख त्रो तमो गई टेंडर ते पे लोग कोर पे कह तुम दिव पान नजर ये इरिगेशन कनाल क्या गोमुत। इथे कन ब्या मारियाब कनाल सो इरिगेशन सी तहत तुम पान सह वुचमुत। अगर तुम मेहरबानी कर तोत गो तथ शूट करो सह वो तुम यह त्रो तुम आला हुकाम तान वातन तुम इरिगेशन बिल्कुल फ्लॉप गोमुत ये हेकान कम ये कर। अगर वो कर ब्लॉक डेवलपमेंट कुछ जाए कम गोटे पे गो NOC अने ये NOC वरी लगान 2 वरी लगान 6 रेत लगान NOC कहें लुकन हज डिमांड गो वो तुम शेरपथरी कनाल यह कम अज कम 40 फुट वनकस 15 फुटन पे मुश्तमिल साइडन ब्लॉक कुछ जाए खालना आमुत। तुम वो अगर ये पोस इरिगेशन गसान कोत यह बड़ अफसोस कत वनकस वक्त मज बहुत तुद वसारत करान गवर्नर सोबस करा अपील जो अत कुन दियो तवज्जो, गांधरबल कुन दियो तवज्जो। कश्मीर में नई मुतारिफ करदा सेब के हाइब्रिड दरख्तों को आम करने और लोगों तक पहुंचाने के लिए मामूसा कुंजर से ताल्लुक़ रखने वाले तालीम याफ्ता नौजवान अब्दुल रशीद वानी ने महकमे हार्टिकल्चर के ताउन से अपनी एक ज़ाती हाई डेंसिटी नर्सरी बनाई है, जहां पर वो इन दरख्तों को उगाते हैं। अब्दुल रशीद वानी ने इन दरख्तों को मेवा काश्तकारों तक पहुंचाने के लिए कुंजर में एक यूनिट भी कायम किया है, जिसका इफ्तिताह DDC कुंजर नज़ीर अहमद शेख ने किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी कुंजर के चेयरमैन अब्दुल करीम डार और दीगर शख्सियात भी मौजूद रहे।
नर्सरी पनी बनोमस गोडस बनो मे पनुन बाग हज हाई डायनेस्टी तथ असल पोस वोस आयस पत बढ़िया मे शौक पत बनो मे पनी नर्सरी यम कुल दिवान यम हाई डायनेस्टी कुल विदाउट सपोर्ट 106 रूटस पे तो बे 7 पे तो बे 111 पे मे निश हेकान तकरीबन 10-20 किस्म बनित डेल्शनस मज बह दी जाड़वंद एडम किंग रूट जीरो माइन अर्ली रेड वन सुपर चीफ स्कारलेट सुपर 2 बे रेड लव एपल दिख अंदर वजुल ूर तो निबरी वजुल गालस मज हेको डार्क बैरन गाला शिनिको रेड गाला टेरेकस गाला फेंजम गाला फेंजड गाला या रेडलम गाला मीमा गाला। हम ये ट्रेडिशनल जो हमारा चल रहा था इस साल हमारा ट्रेडिशनल त्रिपुरा मार्केट में फुटपाथों से नाजायज कब्जा हटाने के लिए म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से आज एक मुहिम चलाई गई। काउंसिल के सदर बशारत हुसैन और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर वली मोहम्मद की क़यादत में चलाई गई इस मुहिम के दौरान इन दुकानदारों के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की गई। प्राइड के तहत जो एक हफ्ते का प्रोग्राम हमारा है, इस सिलसिले की कड़ी के तहत आप देख रहे हैं कि हमने जो मार्केट में फुटपाथ पर कब्जा है, जिन लोगों ने कब्जा जमाया है, उनको हटाने की मुहिम के तहत आज हम म्यूनसिपल काउंसिल बांडीपोरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ निकले हैं और जहां जहां भी इंक्रोचमेंट हुई है लोगों की जानिब से उनको हमने हटाया है और ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैंने अपने अमले को भी हिदायत दी है कि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही बरती न जाए। 196 कश्मीरी पंडित खानदानों की रिहाइश के लिए 12 ब्लॉक्स आलिपुरा शोपियां में जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। रिहायशी ब्लॉक्स में सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वाज़ेह है कि कश्मीरी पंडित हमेशा मिलिटेंट तंजीमों के लिए आसान निशाना बने हुए हैं। जैसा कि 2022 में शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर निसफ दर्जन हमले किए गए। हुकूमत कश्मीरी पंडितों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात के साथ सिक्योरिटी के लिए एक मुकम्मल हल लेकर आई है और मरकजी हुकूमत की फंडिंग से 196 खानदानों की रिहाइश की गुंजाइश के साथ 12 कंक्रीट फ्लैट के ढांचे तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रपोजल था कि यहाँ हम जो पंडित हमारे जो अपने बहन भाई थे उनको वापस आने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम उठाई है PDMP। तो वहाँ हमारा जो काम चल रहा है वो 12 ब्लॉकों का काम 196 पंडित फैमिलियाँ हमारे इसमें रह सकते हैं। ये LG साहब की वसादत से और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो DC साहब की वसादत से जो इन्होंने ये सेटअप लिया है, ये बहुत बड़ा अच्छा सेटअप है ताकि हमारे जो पंडित भाई। महकमे सेहत हुकूमत के ताउन से आज एक निजी स्कूल की 2 रोज़ा सालाना आर्ट नुमाइश का आगाज नगीन क्लब श्रीनगर में हुआ। इस आर्ट नुमाइश में कई नौजवान तलबा ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। दकियानुसी तस्वीरात को तोड़ते हुए इनमें से बहुत से तलबा ने अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से करियर बनाया है और उनका मानना है कि फ़न में एक वसी सलाहियत मौजूद है जहां तलबा अपना करियर बना सकते हैं। Art is necessary for everyone. Don't think that मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर भी है, मेरा बच्चा आर्टिस्ट भी है। JNK टूरिज्म के साथ हमने अप्रोच किया कि we want this hall and they think नहीं it is a very good इनके अपने ये है तो हम इनको अप्रोच करेंगे एंड we are very thankful to JNK टूरिज्म कि उन्होंने हमारे ये प्लेटफॉर्म दिया जहाँ हम एग्जिबिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, विजिटर्स यहाँ आ रहे हैं, उन्हें एक होप मिल रही है कि थोड़ा सा कहीं पे कोई स्कोप है और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने पेंटिंग्स बेचते हैं तो उनको फाइनेंशियली भी वो सपोर्ट मिल रहा है और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं वो शायद इंस्पायर हो जाए। अगर 2 ही लोग 3 ही लोग इंस्पायर हो तो वो बहुत बड़ी बात है। आज का एग्जीबिशन का मेन मोटिव है कि हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं उनके वर्क्स प्रेजेंट करें ताकि लोग भी देखें कि यहाँ पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे जो डिफरेंट वर्क्स करते हैं जैसे कैलीग्राफी है, क्राफ्ट है या पेंटिंग्स है, पोर्ट्रेट्स, तो वो एग्जिबिट करने के लिए आई यूजुअली डू कैलीग्राफी एंड मेजरली कोई भी कैलीग्राफी हो, मॉडर्न हो, कुछ भी अरबिक, इंग्लिश, दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक मेजरली कि ये अगर आप इसका अपना मतलब करियर। जिला पुलवामा के नारबल इलाके के मोहम्मद जबरान जिस्मानी कमजोरी के बावजूद भी बेहतरीन आर्टिस्ट बन गए हैं। 7 साल कबल एक सड़क हादसे में जिस्मानी माजूरी का शिकार हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बेहतरीन खत्तात बनकर दिखाया। जबरान के काम को आज तक मुल्क की मुख्तलिफ नुमाइशों में जगह मिली है। जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, तो अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और ख़ुद को बिज़ी रखने के लिए मैं ये 3D आर्ट और ये कैलीग्राफी में खुद को मसरूफ़ रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इस साल भी आई थी इन्विटेशंस, तो उनमें हम ये पार्टिसिपेट करते हैं कभी कभी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी में
अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक, मुझे जिब्रान ये बताइए कि उन लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं जो किसी न किसी वजह से कोई माजूरी से मतलब एक ही जगह बैठे हैं या दूसरों पर मोहताज रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी? मेरी मैसेज यही है कि अल्लाह से ही उम्मीद लगाए रखे और अपना टाइम ज़ाया। बांडीपुरा में ट्रैफिक सिस्टम बदनज़मी का शिकार है। दूसरी जानिब जनरल बस स्टैंड में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। उधर मुताल्लिकीन का कहना है कि ट्रैफिक सिस्टम की बदनज़मी को दूर करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि जनरल बस स्टैंड में पानी की फराहमी और लाइट्स नस्ब करने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। बांडीपुरा जिला हेडक्वार्टर में ट्रैफिक की बदनज़मी आज की बात नहीं है। एक जानिब जहां इस इलाके में बांडीपुरा श्रीनगर और बांडीपुरा सोपोर सड़क पर कई गैर कानूनी अड्डे कायम किए गए हैं, वहीं कस्बे के अंदर मौजूद जनरल बस स्टैंड पानी के बगैर है, जबकि अड्डे के इर्द गिर्द रोशनी का भी कोई इंतजाम नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बस स्टैंड 33 कनाल पर मुहित है, ताहम स्टैंड का ज़्यादातर हिस्सा खाली ही रहता है क्योंकि यहाँ हर नुक्कड़ पर अड्डे कायम किए गए हैं। बस स्टैंड गोडे फैसिलिटी शाम गाड़ी रात खतर फैसिलिटी गोडे आब की शाम दरबदर गो लाइटन प्रॉब्लम त्रुन अगर ड्राइवर चेयर बिचार तमिस इंतजाम जनाब ये क्वार्टर बस स्टैंडस कह बस स्टैंड मकसद अत मज तमाम चीज पैसेंजर खतर गो शार्ट आसन रूद विच छट छट गाड़ियों तल त्रुन गाड़ी और पाप अत स्टैंड यमो बनोमुत कुल स्टैंड बनोमुत स्टैंड बनोमुत क्यों स्टैंड बनोमुत मेनस पे बनोमुत स्टैंड अत कह कर अड़न मज बरिक रेड वर कोचन मज रेड वर तो ट्रैफिक गज कोत बे गोस मेन आसन यह बाजार खास कर नोप और रटो पुन जामिया मस्जिद अगर अत मज लगावान सो फ्लावर क्या तथ वन डेविड लगावान वनकस तहन सह लगावान साइडस गाड़ियान पान ग दुकानस मज अपर यपर अम सह कि अगर कह गाड़ रुकाए पतिन ग तमिस लान खड़ा यह गोस कुन त सूरत मज अगर मज डिवाइड लगावान तम सत 70% गम ठीक। काबिल जिक्र बात यह है कि ट्रैफिक की इस बदनज़मी से आम लोगों के साथ साथ ताजिर और ट्रांसपोर्टर भी परेशान हैं, जबकि वीआईपी गाड़ियां सायरन बजाकर अपने लिए रास्ता बना ही लेती हैं। कहानी का एक और पहलू ये भी है कि कई दहाइयों कबल बनाई गई सड़कें बढ़ते ट्रैफिक के लिए नाकाफी पड़ रही हैं। यही वजह है कि इलाके में एक अरसे से बाईपास तामीर करने का मुतालबा किया जा रहा है। और इस सिलसिले में परसों हमने एक मीटिंग भी यहाँ मुनक़द की है ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से, और कई इश्यूज़ पर हमने बात की है, और इस सिलसिले में अभी कोई फाइनल हतमी फैसला नहीं हुआ है, और हम सोच विचार कर रहे हैं कि ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ हो जाए जिससे ताजिर बरादरी को भी फ़ायदा हो और ट्रांसपोर्ट भी मुतासर न हो और आवाम को भी राहत मिले। और हमारे कुछ सोलर लाइट्स आ रहे हैं जिनको हम जो बस अड्डा है वहाँ पे हम लगाने की जा रहे हैं। और जहाँ तक ड्रिंकिंग वाटर का ताल्लुक़ है, और मैंने एक्जन पीएचई से भी बात की है, उनको मैं अभी लेटर एक इरसाल कर रहा हूँ इस हवाले से, और विद इन नो टाइम 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ वो पब्लिक पॉइंट भी लग जाएगा। वाज़ेह रही कि जिला हेडक्वार्टर पार्किंग की सहूलत के बगैर है, और यूं सड़कों पर निजी गाड़ियों की पार्किंग ट्रैफिक जाम का सबब बन जाती हैं। मकामी आबादी का मुतालबा है कि ट्रैफिक निज़ाम की बदनज़मी को दूर करने के अलावा कार पार्किंग की सहूलत भी लोगों को दस्तयाब रखी जाए और इलाके में बाईपास तामीर करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाए। बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की